A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be doing statement of purpose as part of directed writing for class 11 and 12 ISC. We have not got any sort of outlines by the council जैसे कि उन्होंने बाकी जो पार्ट्स ऑफ डायरेक्टेड राइटिंग है 8 पार्ट्स हैं तो उसमें कहीं ना कुछ क्लूज मिल जाते थे बट इसमें नहीं मिले हैं. सो आई हैव टेकन दिस फ्रॉम मेनी ऑफ द वेबसाइट्स और उसको एग्जाम्पल करके आई हैव फॉर्म्ड अ होल डॉक्यूमेंट. आई विल सेंड दिस डॉक्यूमेंट टू यू ऑन टेलीग्राम. इसमें हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं. फर्स्ट इज फॉर साइंस स्टूडेंट्स जैसे सम सॉर्ट ऑफ इंजीनियरिंग काइंड ऑफ. एक हमने ह्यूमैनिटीज से लिया हुआ है सम सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री and one I have taken for economics. Okay, so if there is something that still you didn't understand, ask me. The very first thing is that how to write a successful statement of purpose. इसमें हम ये भी बताएंगे कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ इंक्लूड कर सकते हो, what things you need to remember and how it is different from personal profile, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें होती हैं जो एकदम सिमिलर होती हैं. तो दिस इज जस्ट एन आइडिया इन केस आ जाता है एग्जाम में तो एटलीस्ट आप उसको डील कर पाओ. बट एग्जैक्टली ये आएगा, आई हैव नो श्योरिटी ऑफ इट. एवरीथिंग यू नीड टू नो टू राइट एन एक्सीलेंट एसओपी फॉर योर एप्लीकेशन. ओके, यहाँ पर ये सारी चीजें दी हुई हैं. क्या बोला गया है? यूनिवर्सिटीज अब्रॉड require you to submit your application with a statement of purpose. एक SOP आपको उसमें साथ में देना पड़ता है अगर आप किसी भी बाहर के यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, और इवन इन इंडिया ऑल्सो, दैट आर्टिकुलेट्स योर करियर पाथ and goals ki that means so that the statement of purpose that tells you about your career path कि आप क्यों इस लाइन में जाना चाहते हो and what are your goals. This helps them in choosing the right candidate. This helps universities to choose कि वो कौन सा सबसे बेस्ट कैंडिडेट्स हैं जो जिसको वो अपने कोर्सेज जो है वो ऑफर कर सकते हैं. Okay, now what is a statement of purpose? This statement of purpose, also known as research statement or a letter of intent. Intent means your intention कि आप क्या चाह रहे हो. It is written to the admission panel. ये admission panel जो admission करता है उनको लिखा जाता है. And it talks about your career path, your interests, your professional contributions कि आप जिस भी लाइन में जा रहे हो उसमें आप कितना contribute करोगे, your goals and the driving force behind pursuing a particular program. In case you wish to pursue a particular program, उससे related what is the driving force, what forces you means what are the motivations that have brought you to pursue this program. This is usually submitted in the form of an essay. Even though when you write directed writing आप उसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हो, डायरेक्टेड राइटिंग बहुत खींच के नहीं लिखी जाती है, बट स्टिल ये थोड़ा सा डिटेल्ड होता है एज कंपेयर टू पर्सनल प्रोफाइल. Certain universities may also keep it question based, और कुछ यूनिवर्सिटीज अपना फॉर्मेट देती हैं जिसमें वो क्वेश्चन पूछती हैं और आपको उसके आंसर के फॉर्म में लिखना होता है. इट इज द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन that decides your admission in your preferred institution. Okay, the very first thing is कि statement of purpose में क्या क्या चीजें आएंगी. Your personal background, your financial background, academic details आपने क्या क्या किया हुआ है academics में, your professional experience full time part time या voluntarily आप क्या चीजें करते हो, immediate and long term goals for now and for the long term, reasons why you wish to study this particular मतलब इस particular institution में आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हो तो वहां आप क्यों अप्लाई करना चाहते हो, reasons of being interested in the chosen field. if you wish to go for mechanical engineering तो आप क्यों उसमें जाना चाहते हो. if you wish to go for some special course in any of the things, MBA in HR, MBA in marketing करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो. अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और ये जो भी चूजन फील्ड्स हैं आपको अगर कभी आप इसके लिए लिखोगे अपने आप से प्रैक्टिस करने के लिए तो आप हर एक कोर्स के इम्पोर्टेंस गूगल पे सर्च कर सकते हो और उसके बाद आप अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को बना सकते हो. ओके, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं वो, एंड योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज. ठीक, तो अब है दैट व्हाट थिंग्स यू नीड टू डू. अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट
कोर्स अप्लाई करना चाहते हो या तो पोस्ट ग्रेजुएट. अंडर ग्रेजुएट मीन्स आफ्टर योर क्लास 12th और ये पोस्ट ग्रेजुएट होता है आफ्टर योर ग्रेजुएशन. ठीक. तो सबसे पहला है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज मीन्स ऑब्वियसली अगर आपसे पूछा भी जाएगा तो अंडर ग्रेजुएट ही पूछा जाएगा कि 12th के बाद अब क्या करना चाहते हो. तो योर पर्पज ऑफ टेकिंग द प्रोग्राम, आप इसमें क्या क्या चीजें लिखोगे. वाई यू विश टू टेक दैट प्रोग्राम एंड द अपॉर्चुनिटी यू विश टू एक्सप्लोर. उस प्रोग्राम को करते टाइम आप क्या क्या चीजें करना चाहते हो. योर अकेडमिक जर्नी, आपको बताना है कि हाउ मीन्स यू वर मोटिवेटेड टू कम एंड स्टडी at this subject. Then accomplishments if any, extracurricular activities, motivation and career aspirations, career से related what things you wish to do, assignments undertaking during studies, your internship, अगर आपने कहीं internship की है तो वो भी आप इसमें बता सकते हो. Then post graduate में you will tell your short term and long term career goals and personal goals, evidence of professional achievements if you have, anecdotes means any sort of records of teamwork, leadership and other corporate क्वालिटीज की, मतलब एनी सॉर्ट ऑफ द स्टोरी, अगर कोई भी काइंड ऑफ स्टोरी, टेल दैट यू विश टू टेल अबाउट द टीम वर्क. करियर एक्सपेक्टेशंस, इससे आप क्या चाहते हो कि व्हाट वुड द इंस्टीट्यूशन डू फॉर यू, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ड्यूरिंग दिस टाइम. एंड योर वॉलेंटियर वर्क इफ एनी, अगर आपने कहीं वॉलेंटरली कहीं काम किया है तो वो भी आप इसमें बता सकते हो. ओके, द वेरी फर्स्ट इज सैम्पल 1. This is for science or any of the courses you wish to pursue in science. इसीलिए हमने तीनों के parts लिए हुए हैं. As a young boy, I loved cars and dreamt of designing. This is some sort of, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, but still it is some sort of informal tone. वैसे तो it is rather more formal than personal profile. यहाँ पर क्या कहा गया है कि as a young boy, I loved cars and dreamt of designing cars for some of the best names in the world. With excellence driving my motivations, with excellence driving my motivations, I decided to apply in India's premier institution, means I am applying to IIT. Okay, and began putting in extra hours in preparation from as early as grade 9. कि just because I wished to apply to IIT, I have started my preparation right from class 9. अभी आप कैसे लिख रहे हो, as a class 12 student लिख रहे हो, बट ये आप पहले का बता रहे हो क्योंकि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन मीन्स यू आर इन 12th एंड यू विश टू अप्लाई फॉर सम ग्रेजुएशन प्रोग्राम. आफ्टर 10th grade I took admission in the non medical stream क्योंकि उसको डॉक्टर्स वाला पढ़ाई नहीं करनी थी. Enrolled in tutorials to prepare for IITs and then he enrolled in some tuition classes so that he can prepare for IIT. I was confident about my choice and knew that it was the best way forward. Destiny took me to the USA, और हो सकता है कि इससे he can go towards USA. Vacationing at my aunt's हाउस इन XYZ सिटी, यू कैन टेल एनी ऑफ द सिटी नेम. और उसने कहा कि मैं मतलब अपनी आंट के घर में रहता था जो कि यूएसए में है. आई बिकेम फ्रेंड्स विथ माई कजिन्स नेबर्स, मेरी कजिन जहाँ पे रहते थे वहीं पे मैं रहता था और उनके साथ the cousins के जो neighbors थे उनके साथ I had a nice relationship. Discussing cars and the very joy of building these machines helped me for my steady rapport, means उनके साथ जो मेरे neighbors थे, neighbor के son थे, उनके साथ cars के बारे में discuss करना और इन machines को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में discuss करना, उसके कारण मतलब there was a strong bond between us with whom I spent hours talking about cars and sharing information, जिसके साथ मैं बहुत घंटे बिताता था ये सब बात करने में. I was surprised by his level of exposure, the easy way in which he was able to implement the learning, and his highly involved reasoning skills, means he had also the same interest, जैसे मैं था वैसे ही वो भी था. ठीक है. For the first time in my life, I came to appreciate the importance of information and exposure. किस एक्सपोजर क्या होता है, किसी चीज को फेस करना, लाइक व्हेन यू एक्चुअली गो टू फील्ड टू फेस समथिंग इज नोन एज एक्सपोजर. और
उस टाइम उसने ये चीज अप्रिशिएट की कि हाँ उसको जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सब उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग अबाउट देयर एजुकेशन सिस्टम, देयर एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर क्या कहा गया, आंट का नेबर जो कि यूएसए में था। तो यूएसए का जो एजुकेशन सिस्टम था उसकी यहाँ पर बात हो रही, क्योंकि उसको अल्टीमेटली वहीं पर ही पढ़ाई करनी थी। So he said that the importance they gave to practical aspects of education really drew me to it. The fact that India, though growing technically in a rapid progress, leaps and bounds in a rapid progress, is still far behind the West. अब यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो इंडिया की थोड़ी सी बुराई कर रहे हैं, that is wrong. ठीक, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं इन द सेंस कि इंडिया भले ही टेक्निकली बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी हो, हाई प्रोग्रेस उसने उठाई हो, बट स्टिल it is far behind the West countries when it comes to automotive engineering sector. If you wish to go in the such engineering sector, he made me rethink my decision to apply to IITs. और उसने सोचा कि मतलब why should I go for IITs if I can apply for USA. Then he realized, इतना डिटेल में मतलब ये तो बहुत ज्यादा ऐसे हो गया, ठीक है, आप उसको वैसे भी करके लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर उसकी मोटिवेशन भी दिखाई गई है। तो यू कैन इवन राइट कि हाँ मतलब बीइंग विद माय नेबर आई रियलाइज दैट द स्टडी इन यूएसए इज रादर मोर nice than nicer than that of IITs. So I realized that to work as a design engineer at a leading car manufacturing brand, I must have not only well developed technical skills but also the right network. मुझे right network भी चाहिए, मुझे global exposure चाहिए, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ाई करना चाहिए जो ग्लोबली रिलेटेड हो, ना कि सिर्फ एक नॉर्मल सी कंट्री या सिटी में। This convinced me that I should pursue my bachelor's from an international institution. Okay, to pursue this aspiration so that whatever I have thought of मैं उसको कर सकूं, I changed to my school to switch to a CIE curriculum, मतलब इंटरनेशनल करिकुलम ये होता है, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन, ये वाले बोर्ड्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं इंटरनेशनल बोर्ड से वो पढ़ाते हैं। तो उस करिकुलम में उसने बोला कि मैं स्विच करना चाहता हूँ, एंड मीन्स ही एक्चुअली डिड इट and he worked to adapt myself to international teaching pedagogy, means international teaching methods को मैंने switch कर दिया so that I can learn the international education. Though the decision eventually resulted in me repeating about 18 months of schooling, मुझे दोबारा से 18 months of schooling repeat करने पड़े। Obviously अगर आप क्लास 10th में जा रहे हो गए हो सॉरी क्लास 12th में गए हो और आप 12th के बाद अपनी स्कूल चेंज कर रहे हो, बीच ही में चेंज कर रहे हो, 12th ना पार करके आप चेंज कर रहे हो, तो आप कहीं पे भी अप्लाई करोगे तो देयर यू हैव टू स्टडी फ्रॉम क्लास 11। वही चीज उसने कहा कि इट रिजल्टेड इन मी रिपीटिंग माई 18 months ऑफ स्कूलिंग। आई न्यू दैट माई एफर्ट्स वुड पे रिच डिविडेंड्स इन फ्यूचर। और मुझे पता था कि मेरे जो भी ये एफर्ट्स हैं, ये जो इतनी भी सैक्रिफाइस है, इट विल रीपे मी इन फ्यूचर रिच डिविडेंड्स। डिविडेंड इज पेड ऑन शेयर्स। कॉमर्स बाहर आ रही मेरी। वर्किंग हार्ड आई केप्ट माई फोकस स्ट्रेचिंग माई सेल्फ बियॉन्ड द करिकुलम। और उसके बाद आफ्टर वर्किंग सो हार्ड मेरा जो फोकस था एंड टू स्ट्रेच माई सेल्फ बियॉन्ड द करिकुलम, करिकुलम के बाहर सोचना। व्हाट आई डिड, आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन साइंस फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। A natural leader I was handed over, means since I was a natural leader I was handed over the responsibility of coordinating and organizing various events. हमने स्टार्टिंग बताया था कि आप इसमें अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी मेंशन कर सकते हो, वही वो कर रहा है। I delivered exceptional results all the while learning from varied situations, अलग अलग सिचुएशन से लर्न करके मैंने बहुत ही अच्छे रिजल्ट स्कूल को दिए हैं। The academic achievement are of course visible in my grades, और जो academic achievement मैंने पाई है that can be seen via my report card. Over time I also realized कि academic excellence ही सिर्फ अलग नहीं होती है, so I began pursuing sports and games. So what he did,
he again started pursuing sports and games with renewed vigor. Vigor means physical strength. Being a skilled basketball player means he was also a nice basketball player. He had captained my house team in my previous school. जब ये अपने प्रीवियस स्कूल में था, इसको स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, तो जब ये अपने प्रीवियस स्कूल में था तो एट दैट टाइम ही वाज द कैप्टन ऑफ हिज हाउस टीम, ओनली टू गिव इट अप इन द परस्यूट ऑफ माई IIT ड्रीम. और उसके बाद उसने क्या किया, जस्ट बिकॉज कि ही विश टू परस्यू IIT, उसने अपने इस ड्रीम को छोड़ दिया. he gave it up. Now again he returned to the field with a vengeance. Vengeance means again taking revenge, कि अब मैंने वो चीज बीच में छोड़ी थी, अब मैं इसको पूरा करूंगा. तो his positive attitude, sorry, यहाँ पे आप अपना लिखोगे my positive attitude, leadership skill as well as my past experience of managing teams. ठीक है. soon won me the post of school sports captain. पहले वो सिर्फ अपनी टीम का कैप्टन था, अब वो स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन बन गया. You can write here the year also. Continuing with my foray into sports, so मतलब I was rushing into sports. I stood fourth in the district level chess championship. Means just because कि I was getting into sports, उस टाइम पर मेरा फोर्थ रैंक आई थी. वेयर इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल चेस चैंपियनशिप. यहाँ पर वो अपनी अचीवमेंट्स लिख रहा है, जैसे आप लिख सकते हो. फर्दर एज अ मेंबर ऑफ द स्कूल्स फुटबॉल टीम एंड बास्केटबॉल टीम, जो भी ईयर्स हैं वो आप मेंशन कर सकते हो. आई प्लेड मैनी स्टेट एंड नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स. बहुत ज्यादा, मतलब जितना हो उतना ही सिर्फ आपको लिखो, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि आप हर चीज उसमें मेंशन करो. इन फैक्ट I even participated in dance competitions, won the second prize at an inter-school fest. Quest 2011 फेस्ट फिएस्टा हमने करवाया था कल्चरल रिव्यू में, रिव्यू ऑफ कल्चरल प्रोग्राम में. ये वैसे ही है कि हमने इंटर स्कूल जो भी फेस्ट था उसमें आई गॉट सेकेंड प्राइज एट द ABC स्कूल एंड यू कैन मेंशन हियर द सिटी नेम. ओके, moving on, I believe that I have done my groundwork. means अगर मुझे एडमिशन लेना है कहीं पर, तो जितना मेरे अंदर स्किल्स होनी चाहिए वो सब I have. this course at your university, whichever course, तो यहाँ पर आप उसका नेम भी मेंशन कर सकते हो. in your university would provide me with in-depth skills that are required to pursue my career ambitions. Okay, तो here you can learn this line as it is, जैसे कि इसमें दी हुई है, इसको आप as it is learn कर सकते हो. ये वाली line, that moving on I believe I have done my groundwork and this course at your university would provide me with an in-depth skill I require to pursue my career ambitions. or you can mention the specific skills that you hope to gain, कि after pursuing this career what skills you will have, आप उसको mention कर सकते हो उसमें. Then post this course means after this course I dream of graduating from your university to join an automobile major such as, कि आप किसी कंपनी टाटा और सम ऑफ द कंपनी का नेम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि आप कहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो एक्चुअली. हेयर जैसे बहुत लोग TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में ज्वाइन करना चाहते हैं. हेयर आई विल गेन एक्सपोजर, उस कंपनी में जहां मैं ज्वाइन करूंगा, तो हेयर आई विल गेन एक्सपोजर टू दिस. मीन्स कि व्हाट थिंग्स आई विल बी एबल टू मेक, और क्या मैं एक्चुअली बनाना चाहता हूँ वो यहाँ पर मेंशन करोगे. विच विल अलाउ मी टू अचीव माई लॉन्ग टर्म गोल. यू कैन मेंशन योर लॉन्ग टर्म गोल्स, व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू इन द लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म यहाँ पर दोनों काइंड्स ऑफ गोल्स मेंशन कर सकते हो. Okay, a bachelor's course in mechanical engineering combined with master's in automobile engineering from XYZ university, mention the the state, city and the state, is my preferred choice for many reasons. अब यहाँ पर आप अपने reasons भी बता सकते हो. Discuss the particular aspects of university. उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, अब इसको सर्च करने के लिए आप क्या करोगे कि उस पर्टिकुलर कोई भी अच्छी सी यूनिवर्सिटी ढूंढो, चाहे इंडिया की चाहे इंडिया के बाहर की, उनके में अबाउट द यूनिवर्सिटी, अबाउट द स्कूल लिखा होता है, तो वहां से आप इसको ढूंढ सकते हो. ओके, कि इट हैज ड्रॉन ये जो यूनिवर्सिटी है, दैट ड्रॉज यू टू इट
फॉर एग्जाम्पल कि उनका जो कोर्स करिकुलम है, स्किल्ड फैकल्टी मेंबर्स हैं, फैसिलिटीज जो उन्होंने अवेलेबल करवाई हैं, एंड द अपॉर्चुनिटीज यू माइट रिसीव एज स्पेसिफिकली एज पॉसिबल, ये सारी चीजें उसमें आप मेंशन कर सकते हो। पार्ड बाय द टेक्निकल एक्सपर्टीज गेन्ड एट योर यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर ये अपनी कंक्लूडिंग लाइन लिखोगे, I would be able to steadily move towards designing my own dreams. ठीक, राइट अ कंक्लूडिंग सुटेबल पैराग्राफ मीन्स आप यहाँ पर क्लोजिंग अपनी मेंशन करोगे कि दैट because of all these reasons I wish to apply to your university and so that I can fulfill all my dreams, and this is over. Then next is the history. वैसे तो इसमें लोगों को कम ही इंटरेस्ट होगा, बट स्टिल आई एम मेंशनिंग इट कि इन केस कि किसी को स्पेसिफिक ऐसे किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से अपार्ट फ्रॉम साइंस एंड कॉमर्स अगर किसी को मेंशन करना हो, लास्ट में इकोनॉमिक्स का भी है, तो दैट आल्सो आई विल गिव यू. फॉर मी हिस्ट्री वाज जस्ट अ लिस्ट ऑफ मोनार्चेस, कैटलॉग ऑफ वॉर्स एंड अ क्रॉनिकल ऑफ डायनेस्टीज. ओके, तो यहाँ पर वो जो भी पर्सन है वो ये बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में मेरे लिए हिस्ट्री सिर्फ इतना ही था. Then later all this changed when I reached in class 6 standard. जब मैं क्लास 6 में पहुंचा तो I was then fortunate to study history under a dynamic teacher. Means teachers play a very good role. तो यहाँ पर कहा गया है कि एक टीचर ने मेरे अंदर ये चेंजेस लाए थे कि मुझे उस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा. ओके, लाइक मैथमेटिक्स के लिए और एनी ऑफ सच, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए आप कुछ टीचर्स होते हैं जो आपके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ला देते हैं उस चीज को पढ़ने का. वैसे ही यहाँ पे कहा गया है he changed my perspectives. I realized that there is a social history and economic history, कि यहाँ पर कुछ social history और economic history होता है. There is a history of science and ideas. हर चीज के लिए एक उसका बैकग्राउंड होता है. द टिपिंग पॉइंट केम व्हेन माय टीचर इंट्रोड्यूस्ड मी टू द भक्ति मूवमेंट. मीन्स उन्होंने मुझे भक्ति मूवमेंट के बारे में बताया और तब मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया इन चीज में. आई रियलाइज दैट आई बिलोंग टू द लैंड ऑफ सेंट्स. और वो कहता है दैट ही रियलाइज्ड कि वो महाराष्ट्र, द लैंड ऑफ सेंट्स को बिलोंग करता है. द लाइव्स ऑफ सेंट्स फैसिनेटेड मी. मीन्स इट अट्रैक्टेड मी. I delved deep into the books to know more about their work. बुक्स में मतलब जो भी हिस्ट्री की और जो भी मेरे करिकुलम की बुक्स थी, सिलेबस की, मैं उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगा, सो दैट आई कैन नो मोर इन डेप्थ कि मैंने मतलब उन्होंने क्या क्या चीजें की हैं अबाउट देयर वर्क और देयर टाइम. आई रेड अबाउट संत नामदेव, संत दयानेश्वर, एकनाथ, संत, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ, तुकरम एंड रामदास स्वामी, इन सब के बारे में हमने उसमें पढ़ा. व्हेन व्हाट आई गेन्ड ऑफ कोर्स वाज वेरी प्रीशियस. और इन सब से मैंने क्या जाना, माय फैसिनेशन एंड द सब्जेक्ट ग्रू बाय ईच पासिंग डे. यहाँ पर वो अपने सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस लिख रहा है कि कैसे उसको इन सब चीजों में इंटरेस्ट आया. दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन. देन हियर क्या लिखा हुआ है, द एम्स दैट ही वाई ही विश. माई एम in seeking admission to your college is that you have very good department in South Asian history. कि just because आप इसमें mention कर सकते हो, जैसे हमने बोला था कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज की वेबसाइट पर जाना, उनके में अबाउट में कॉलेज की इम्पोर्टेंस होगी, तो वो आप इसमें लिख सकते हो. आई नो दैट द लेट एमिनेंट हिस्टोरियन एरिक हॉब्सबॉर्न taught in your college throughout his career. कि आप इसमें मेंशन करोगे there is one of the good teachers जिसने मतलब यहाँ पे कहा गया कि one of the very important historian थे जिन्होंने आपके कॉलेज में पढ़ाया था. likewise famous R.J. Evans and Roy Foster was one members among your faculty. कि ये दो भी बहुत ज्यादा फेमस लोग आपकी फैकल्टी में थे. So therefore I am hopeful that I would also get a chance to learn under world class teachers. और हमको भी ये चांस मिलेगा कि हम वर्ल्ड क्लास टीचर्स से पढ़ें. Once I get into your esteemed institution, कि जब भी whenever I'll get admission to your institution, हमको वहां पर ऐसे टीचर्स मिलेंगे. माई ब्रॉड प्लान मीन्स व्हाट यू आर योर दीज आर तो योर गोल्स कि आप क्या करना चाहते हो, इज टू साउंड ग्राउंडिंग इन द मेडिवल सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये कौन से गोल्स हैं, ये मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड गोल्स हैं.
क्यों कि मतलब वो जो चीज है, या इसको एक्सपोजर वर्ड भी कह सकते हो कि एक्चुअली आप क्या उसमें पढ़ना चाहते हो. So he is saying that my broad plan is to have a sound grounding in the medieval social history of India. Medieval history, socio-economic history of India में I have a sound grounding कि मेरी जो ground मतलब जो भी मैंने पढ़ाई की है वो बहुत ही strong है. And thus I wish to have more during my graduation years and to move on to Bhakti movement during my postgraduate studies. और पोस्ट ग्रेजुएट में हम स्पेसिफिकली इसी के बारे में पढ़ेंगे. डॉक्टोरल एंड पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च would be focused on the life and work of a single saint. और यहाँ पर whenever I'll be doing PhD तो हम एक single saint की पूरी history के बारे में पढ़ेंगे. I am an avid reader, means I am a very keen reader. I hope my exposure to saint literature in Marathi would stand me in good stead, means it will bring me to a good position. वो यहाँ पर अपने स्पेसिफिक लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं जो भी लिटरेचर पढ़ना चाहता हूँ, सेंट लिटरेचर पढ़ना चाहता हूँ, वो आई वॉन्ट टू स्टडी इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज दैट इज मराठी. I am a state level chess player. Here you can also give your achievements. Chess, as per the game theory, is full of information game. Your opponents see on the board as much as you see, means जितना आपका ओपोनेंट बोर्ड पर देखता है आप भी उतना ही देखते हो. However, the patient search for possibilities pay the dividend, कि जब जितना भी आप ढूंढते हो चीजों को, it gives you a nice dividend. और यू कैन से शेयर्स पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं. द प्लेयर प्रोसेसेस द वेरियस permutations and combinations and finally makes a unique move, the winning move. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो दो टीम्स होती हैं ड्यूरिंग चेस वो सब कुछ देख परख के उसके बाद एक मूव करती हैं. आई एम श्योर आई हैव इट इन मी, और मुझे पता है कि ये मेरे अंदर भी है. आई वर्कड एज एन amateur research assistant to Dr. Pentse while he was working in his monumental work. और यहाँ पर आप अपनी internship भी बताओगे in case you have done any. तो यहाँ पर बोला गया है कि एक रिसर्च असिस्टेंट थे, अमेट्योर नहीं, मतलब आई वर्कड एज एन अमेट्योर रिसर्च असिस्टेंट. अमेट्योर होता है वो पर्सन जिसको पे नहीं किया जाता है, वो ये काम अपनी इच्छा से एज अ हॉबी करता है. तो ही हैज वर्कड अंडर डॉक्टर पेंटसे व्हेन he was working in his monumental work on the भक्ति मूवमेंट. भक्ति मूवमेंट पे जब वो अपने मॉन्यूमेंट से रिलेटेड स्टडी कर रहे थे तब हमने उनके अंडर काम किया था. आई हैव ऑल्सो अ डिप्लोमा इन इंडेक्सिंग बुक्स इन ह्यूमैनिटीज, कि मैंने इस पर भी एक छोटा सा 2 महीने 3 महीने का डिप्लोमा भी किया है. आई अर्नेस्टली होप दैट एन एक्सपोजर टू द एक्सीलेंट academic atmosphere prevailing in your prestigious institution would bring forth the best in me, thus allow me to contribute my might, means my power, to the rich cultural heritage of my land. क्या कहा गया है यहाँ से, ये वाली लाइन भी आप कॉपी कर सकते हो, अपने पास लिख सकते हो इसको एज कंक्लूडिंग, कि ये जो एक्सपोजर है टू एन एक्सीलेंट एकेडमिक एटमॉस्फेयर, जो आपके इंस्टीट्यूशन में एटमॉस्फेयर है पढ़ने वाला, विल ब्रिंग फोर्थ द बेस्ट इन मी, इट विल ब्रिंग सबसे अच्छा मेरे अंदर से लेकर के आएगा. एंड इट वुड अलाउ मी टू कॉन्ट्रीब्यूट माई माइट सो दैट आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट माई पावर and my interest to the rich cultural heritage of my land. Okay, just because कि history के जो लोग होते हैं उनको लैंड और मॉन्यूमेंट्स इन सब में बहुत इंटरेस्ट होता है अपने कंट्री की, तो यहाँ पर ये बात की गई है. देन उसके बाद नेक्स्ट इज फॉर कॉमर्स. लिख सकते हो कॉमर्स, ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि कॉमर्स वाले कॉमर्स में लिखेंगे, दैट इज अप टू योर इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट. पढ़ने को तो आप लिटरेचर के ऊपर भी लिख सकते हो. ओके, दिस इज फॉर इकोनॉमिक्स. तो क्या कहा गया है, एवर सिंस माई चाइल्डहुड. देखो यहाँ पर ऑब्वियसली आप कहीं पर कोर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो वहां पर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही हो जाओगे, क्योंकि अगर आपको किसी स्पेसिफिक जगह पर पढ़ना है तो आपको कुछ स्पेसिफिक कोर्स ही पढ़ना होगा, इसलिए यहाँ पर ये चीज बोली गई है. ठीक, कुछ लोगों को एग्रीकल्चर, लाइक बायोलॉजी में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, तो कुछ लोग एग्रीकल्चर, जूलॉजी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन सब में जाना पसंद करते हैं. तो
आप उसके अकॉर्डिंग उनकी इम्पोर्टेंस और चीजों के बारे में भी सर्च कर सकते हो. ओके, एवर सिंस childhood the functions of economy have fascinated me, that I have been very much interested. इकोनॉमी के फंक्शंस में बहुत ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड था. आई लव बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एंड यूज इकोनॉमिक थ्योरीज एंड एंजॉय चैलेंजिंग माई सेल्फ टू फाइंड कनेक्शंस बिटवीन इट्स डिफरेंट सेक्टर्स. यहाँ पर ये कहा गया है दैट आई लव बीइंग एबल, मतलब इकोनॉमिक थ्योरीज को अंडरस्टैंड करने में, टू एंजॉय दोस, चैलेंजिंग माई सेल्फ टू फाइंड कनेक्शंस. दो सेक्टर्स में क्या कनेक्शंस है उनको ढूंढने में आई लव डूइंग दैट. ये कॉमर्स स्टूडेंट्स बहुत आसानी से समझ जाएंगे. आई हैव बीन कैप्टिवेटेड बाय द वे दिस सब्जेक्ट इज अप्लाइड इन एवरीडे लाइफ इन मोस्ट बेसिक वेज ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स है, ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा अप्लाई होता है. डिसाइडिंग व्हाट ब्रांड ऑफ मिल्क टू बाय, हाउ इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस समथिंग एज अ मेजर एज एक्सचेंज रेट, की एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये सारी चीजों में कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रांड क्या रोल प्ले करता है, यहाँ पर आप बता रहे हो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस. ठीक, तो आप अपनी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंस भी इसमें मेंशन कर सकते हो. फिर उसके बाद क्या कहा गया है, लिविंग इन इंडिया आई एम नो स्ट्रेंजर टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, यू ऑल हैव स्टडीड. By increasing my knowledge in this subject, I hope to better understand these problems and find possible solutions. इसमें एक और टॉपिक आप ले सकते हो, स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो. आप लोग ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, वन ऑफ द दर्दनाक टॉपिक्स है. तो उससे भी, उसमें भी आप बहुत ज्यादा सर्च और ये सब कर सकते हो, मतलब उसकी भी एक स्पेसिफिक स्टडी होती है, तो वो आप उसके लिए भी जा सकते हो. तो यहाँ पर क्या कहा गया है दैट की बाय इंक्रीजिंग माई नॉलेज इन दिस सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, आई होप कि मैं इन प्रॉब्लम्स को समझूं और उनका सॉल्यूशन भी ढूंढ के निकालूं. ओके, आई एस्पायर टू स्टडी इकोनॉमिक्स प्रिंसिपली बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ बोथ द सब्जेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज्यादा डाइवर्स है और इसके एप्लीकेशंस भी बहुत जगह पे होते हैं. बिकॉज इट इज, आई फाइंड इट फैसिनेटिंग एंड चैलेंजिंग, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है एंड बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगता है एट द सेम टाइम. Having studied the subject throughout my high school, I believe that the possible depths to switch to which it may have to may be studied are almost endless. जितने भी वेज में हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ये बिल्कुल खत्म नहीं होगा, मतलब ये बहुत ज्यादा है. एंड द नंबर ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस टू विच इट इज रेलिवेंट इज सिमिलरली वास्ट. और इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट जितने भी रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई होता है वो भी बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा विशाल है. इन एडिशन टू कीपिंग अब्रेस्ट विद द वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, इसको साथ साथ में चलने के लिए I am also interested in studying quirkier fields of economics. Quirkier, some sort of strange things. तो ऐसे ही यहाँ पे कहा गया है कि इकोनॉमिक्स के ये सारी जितनी भी फील्ड्स हैं उसको पढ़ने के लिए also I wish to study, aspire to further study the ideas of behavioral economics and rational decision making to contribute to improving our explanations of market events. कि ये स्टडी को, इकोनॉमिक्स को पहले मैं ग्रेजुएशन लेवल पे, उसके बाद जो हायर स्टडीज होंगी उसमें आई विश टू स्टडी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, दैट इज ऑफ कंज्यूमर्स, एंड ऑल्सो कि डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है टू इम्प्रूव एक्सप्लेनेशन सो दैट आई कैन नो हाउ मार्केट इवेंट्स आर वर्किंग. अ बुक दैट रियली, ये भी आप इसमें लिख सकते हो कि क्या चीज थी जिसने आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लाया. मतलब एक में हमने टीचर का एग्जाम्पल दिया था, इसमें अ बुक इज देयर जिसके कारण वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हुआ था. अ बुक दैट रियली इंट्रीग्ड मी, दैट रियली अराउज क्यूरियोसिटी इन मी was Thinking Fast, Slow by Daniel Kahneman that intensified my desire to delve डीपर इनटू द फील्ड, कि हम उस फील्ड में बहुत ज्यादा डीपर स्टडी कर सकें. इसके कारण एक बुक थी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट. ओके, फिर यहाँ पे क्या कहा गया, टू फर्दर अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को मैं बहुत ज्यादा
अंडरस्टैंड कर सकूं, आई इंटर्नड एन ऑडिटिंग फर्म. हमने लिखा था ना कि अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है, किसी के अंडर काम किया है, तो आप वो भी इसमें मेंशन कर सकते हो. दिस हेल्प्ड मी रियलाइज कि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, लाइक आई हैव आल्सो वर्कड मतलब अंडर एन इनकम टैक्स एडवोकेट. तो वैसे ही यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आपने किसी के अंडर कोई सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप की है, दिस हेल्प्ड मी रियलाइज कि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस जो है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रनिंग ऑफ बिजनेसेस, कि बिजनेस को रन करने के लिए इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. माई सब्जेक्ट चॉइस ऑफ इकोनॉमिक्स इन अकाउंट्स through junior college you can say from 9th onwards has helped me. वैसे तो 6 to 8 होता है, बट यहाँ पर 6 to 8 में इकोनॉमिक्स होती नहीं है, एटलीस्ट हेयर इन दिस बोर्ड ISC. Okay, so it has helped me grasp analytical concepts at a blistering pace, means at an extremely fast pace. Just because कि हम इसको बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, तो I have the habit of grasping the logical things जो इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में होती हैं, and I believe that I am well equipped to face the challenge of studying economics at degree level. And now I am sufficient, क्लास 12 तक पढ़ करके आई एम फाइन, कि अब मैं इकोनॉमिक्स को फर्दर स्टडी कर सकता हूँ डिग्री लेवल पे भी, मीन्स सून आफ्टर योर 12th. आई एम अवेयर कि इकोनॉमिक्स इज स्ट्रांगली रिलेटेड टू मैथ्स. ऑब्वियसली नेशनल इनकम भी होती है इसमें, और इसमें स्टैटिस्टिक्स भी होती है. फॉर दैट रीजन आई हैव स्टडीड मोर रिगरस टॉपिक्स दैट आई विल फर्दर डेवलप एट द यूनिवर्सिटी. जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स है मैंने वो भी स्टडी किए हैं, इंक्लूडिंग कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिकल मॉड्यूल्स. ये भी हमने इसी में ही पढ़े हैं. वन ऑफ द एक्स्ट्रा करिकुलर, यहाँ पे बोला था ना दैट यू हैव टू राइट योर को करिकुलर एक्टिविटीज भी इसमें लिखनी है इफ यू हैव डन एनी. तो को करिकुलर एक्टिविटीज में that opened me to a whole new perspective on world economy, that was that कि हमने Indian Model United Nations Conference in which I was a press corps writer, कि वहां पर मुझे ऐसे असाइन किया गया था as press corps writer assigned to the economic committee. This has helped me understand the intricacies, the complexity of world economy, कि ये सारी मतलब वहां पर आई वॉज देयर एज अ प्रेस कॉप, मीन्स वहां पर हम एक प्रेस के पर्सन बन करके आए थे. तो देयर आई अंडरस्टूड व्हाट हेल्प. वहां पे मैंने क्या पढ़ा, वहां पे मैंने पढ़ा कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वर्ल्ड इकोनॉमी की वो क्या है, गिविंग मी अ चांस टू डिस्कस एंड पजल ओवर इकोनॉमिक इश्यूज, चैलेंज मी टू थिंक इन वेज आई हैव नेवर बिफोर. और इन सारी चीजों ने मुझे हेल्प किया सो दैट आई कैन स्टडी the things that I have never done before. Think the things that I've never thought before. My passion for writing led me to secure the position of sub editor in the school magazine committee. मतलब just because कि I am a very good writer, तो it had helped me कि मैं स्कूल मैगजीन में भी एक एडिटर के जैसे काम करूं, where ये आई लिखा हुआ है, आई रिव्यूड एंड एडिटेड एसेज, जहां पर स्कूल मैगजीन में जो भी एसेज पब्लिश होने थे उसको मैं रिव्यू करता था और एडिट करता था. आई वाज सिलेक्टेड एज स्टूडेंट्स काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव्स. यहाँ पर यू कैन राइट योर अचीवमेंट्स. ठीक है, कि हमको क्या से क्या मतलब अचीवमेंट मिली थी, कि हमको आई वाज आल्सो selected as a student council representative, and my duties, मेरी ड्यूटीज में क्या क्या चीजें थी, was acting involved acting as an interface between the students and the board of governors. स्टूडेंट और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हम आते थे, मीन्स मेरी ड्यूटीज थी कि हम इनके बीच में वर्क करेंगे, putting forth the issues faced by students and working towards the solution of them, so that we can study कि whatever मतलब जो भी इश्यूज हैं स्टूडेंट्स के और उस पर हम लोग वर्क कर सके. आई ऑल्सो टुक पार्ट इन द यूथ आइकन अवार्ड्स. मैंने किसमें पार्टिसिपेट किया है, यूथ आइकन अवार्ड्स में. आई वॉज ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ माई ग्रुप, परफॉर्म द टास्क ऑफ सक्सेसफुली गाइडिंग माई टीम थ्रू मैनी एक्सपेडिशंस. बहुत सारे एडवेंचर्स और एक्सपेडिशंस उन्होंने किए हैं, तो उसमें आई वॉज देयर टू गाइड देम. आई एंजॉय प्लेइंग बैडमिंटन एज ऑफन आई कैन. यहाँ पर आप अपनी इंटरेस्ट्स और अपनी हॉबीज
यहाँ पर आप अपनी नीचे लास्ट वाला जो पैराग्राफ है इसमें अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट भी मेंशन कर सकते हो. बैडमिंटन हैज टॉट मी अ वाइटल लेसन टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ पुअर शॉट. Link it to your program. I have learned not to dwell on my mistakes but to accept them, move on. Because the most important shot in badminton is the next one. I am an amateur guitarist again जो अपनी हॉबी के जैसे प्ले करता है गिटार को. म्यूजिक हेल्प्स मी टू रिलैक्स एंड अनविंड. अनविंड का मतलब भी रिलैक्स होता है. तो यहाँ पे कहा गया है कि ही हैज इंटरेस्ट इन बैडमिंटन एंड गिटार एंड म्यूजिक. I firmly believe that analytical tools from the field of economics and mathematics are essential for a deep understanding of the world so that I can deeply understand the world. ये जितने भी एनालिटिकल टूल्स हैं ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स इट विल हेल्प मी अ लॉट. एंड उसको ये भी पता है दैट आई नो द यूनिवर्सिटीज इन दिल्ली with their fantastic economics department means he wished to study in the Delhi University with their fantastic economic departments can help me realize my dream of simplifying the complexity behind economic situations. Okay, so here you can mention that joining there will help me understand the different challenges that the economy is facing and hence I wish to apply to this institution. अब इसके बाद कुछ टिप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए इफ यू विश टू राइट a स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन और उसका ओवरव्यू रखो. डोंट राइट कंप्लीट फैमिली हिस्ट्री, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है. सेंसिटिव फाइनेंशियल डिटेल्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है. यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्कॉलरशिप. अ सेपरेट डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द सेम. तो अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए एक अलग से डॉक्यूमेंट होती है, वो इसमें होगी. बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिटेल्स इसमें मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है. प्रोफेशनल डिटेल्स भी कम रखो. टॉक अबाउट योर लर्निंग एक्सपीरियंसेस. आपने क्या दिया है उससे आप ये समझो कि आपने क्या लर्न किया है. नॉट अबाउट वाटर कूलर टॉक्स, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा बोस्ट मत करो अपने बारे में कि हमें ये भी आता है ये भी आता है. डू नॉट एक्सीड द गिवन वर्ड लिमिट. ऑब्वियसली अगर आपको 200 से 250 वर्ड्स लिखने हैं तो उतने ही लिखो. बी क्रिप्स. डू नॉट फ्लैटर इन योर लैंग्वेज. बहुत ज्यादा उनको अपने मतलब बढ़ाई करके उनको ये मत बोलो कि हाँ सर प्लीज प्लीज काइंडली लेट मी ज्वाइन इन योर कॉलेज, ऐसे मत करना. डोंट यूज टू मेनी टेक्निकल टर्म्स. जैसे अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो जहाँ पे एनिमेशन या फोटोग्राफी सिखाई जाती है तो आपको अगर उससे रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स बहुत ज़्यादा पता है तो उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करना भी अच्छा नहीं होता है. डू नॉट लाई इन योर स्टेटमेंट. अब झूठ मत बोलना अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में. dishonesty may lead to rejection. Don't write that the institution was not your first choice. ये बिल्कुल मत लिखना कि earlier I wished to apply there and now I am wishing to apply here. Beware with humor. It can backfire. और कभी भी मजाक में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ऊट पटांग सी चीज मत लिख देना. ओके, देन नेक्स्ट इज कि पर्सनल स्टेटमेंट या फिर पर्सनल प्रोफाइल और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में डिफरेंस क्या होता है. ये अराउंड 2 पेज ऐसे होता है. इवन दो जब आप इसको एज आईएससी डायरेक्टेड राइटिंग लिखोगे तो उस टाइम पर आपको कुछ एग्जैक्टली वर्ड लिमिट दी है, आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है. बट एक्चुअल में एसओपी इज रादर मोर डिटेल्ड दैन पर्सनल प्रोफाइल, जिसमें अपने मोटिवेशन की कैसे आपने, जैसे हमने इसमें दिखाया था कि एक टीचर के कारण एक बच्चा मोटिवेट हुआ, एक बुक के कारण मोटिवेट हुआ. ओके, देन गोल्स, एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन करते हो. पर्सनल प्रोफाइल में आप अपने मोटिवेशन, इंस्पिरेशनल गोल्स, अपने गोल्स और अचीवमेंट्स, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, मतलब अपने बारे में उसमें लिखते हो. और यहाँ पर आपने क्या किया है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप उसके बारे में लिखते हो. पर्सनल प्रोफाइल इज मोर पर्सनल दैन अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. Okay, personal statement should elaborate on your aspirations and motivations कि आप क्या aspire करना चाहते हो लाइफ में, how you understand the world or take the world, and how you are motivated to join a particular program.
एंड SOP इज मोर डिटेल्ड वर्जन ऑफ पर्सनल स्टेटमेंट. पर्सनल प्रोफाइल से ये इतना डिफरेंट होता है. इन दिस आर्टिकल वी विल इन्फॉर्म यू डिटेल, मतलब कि यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि दोनों में और क्या डिफरेंस होता है. मेजर डिफरेंस इतना होता है दैट इट कंटेन्स व्हाट यू वांट. आपको क्या चाहिए टू डू, मतलब कि अगर आप एक प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो एक कोर्स में, तो आप क्यों उसमें करना चाहते हो, और what things you wish कि आफ्टर दिस मैं क्या बनना चाहता हूँ, एंड अचीव बाय परसुइंग द प्रोग्राम यू आर अप्लाइंग टू, एंड व्हाट यू विश टू अचीव. इसको करने के बाद व्हाट यू थिंक कि आपको क्या मिलेगा, कौन सी कंपनी चाहिए होगी, व्हाट विल बी योर स्किल्स, ये आप इसमें लिख सकते हो. वेयर एज पर्सनल स्टेटमेंट आपके बारे में बताता है कि आप कैसे हो, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं, क्या चीजें जो आपने बहुत ज्यादा लर्न की हैं या सीखी हैं. ओके, तो इसमें क्या होता है, यू हेयर यू राइट योर मोटिवेशंस, योर गोल्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. और पर्सनल प्रोफाइल में इंस्पिरेशन, पर्सनल मोटिवेशन, गोल्स और अचीवमेंट्स आते हैं. इट कैन बी मीन्स इट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, एंड यहाँ पर आप इनफॉर्मल यूज कर सकते हो. ये थोड़ा सा डिटेल्ड होता है, ठीक, एंड इट इज लेस डिटेल्ड, ये कम डिटेल्ड होता है. Okay, I hope you have understood this much, and finally we have done all the 8 topics of directed writing. इसके अलावा न्यूज़पेपर रिपोर्ट अगर किसी को पढ़नी हो तो प्लीज स्टडी द न्यूज़पेपर्स. उस नहीं तो हमको अगर पढ़ानी होगी तो हम यहीं पर न्यूज़पेपर ही तुम लोग को रीड करवाएंगे. जब हमने सबसे पहले मेंशन किया था, जब हमने इंग्लिश लैंग्वेज का सैम्पल स्पेसिमेन पेपर डाला था, that in that particular video I told you कि take out some English newspapers और उसको read करो, that is newspaper. और in case कोई पुरानी चीजें, travelogues हो गया, पिक्चर, सॉरी पिक्चर नहीं, वो टेस्टिमोनियल्स हो गए, तो ये सब आपके कोर्स में नहीं है. एंड हेंस आई एम क्लोजिंग दिस टॉपिक फ्रॉम माई साइड. डायरेक्टेड राइटिंग में मेरी तरफ से सब कुछ हो गया है. इसके बाद 50 बार ये वाले वीडियोस देखने से अच्छा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देते हैं उसको एक बार दो बार करके रीड करो, और उससे रिलेटेड, लाइक सपोज आई हैव गिवन यू 3 सब्जेक्ट्स, तो इसके अलावा किसी सब्जेक्ट पे आप खुद से चीजों को लिखो इंस्टेड ऑफ ओनली सीइंग द वीडियो और रीडिंग द डॉक्यूमेंट. until you use your pen by your side, आप खुद से उस पेन को नहीं चलाओगे, दिमाग में चीजें नहीं बैठेंगी. keep this in mind. And still if there is something that you have not understood, ask me. I'm still saying कि ये सिर्फ हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं so that you can attempt it. अगर आ जाता है, क्योंकि वो कंपल्सरीली आएगा, तो आप उसको डील कर सको. बट स्टिल ISC ने कोई ऐसा क्लू नहीं दिया है, तो आई एग्जैक्टली डोंट नो हाउ इट विल कम. ओके, एंड बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम ऑल्सो. थैंक यू.